ओके सो अक्सर हम हमारी वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं, हम हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक जी बोलते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या बात हम करने वाले हैं। बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज मैं आपको शायद ना बता पाऊँ कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज आई विल बी मोस्टली मिसिंग आउट वन थिंग और दी अनदर। आज की वीडियो में डायरेक्ट बात करना चालू कर देते हैं। आई ट्राई टू पुट टाइम स्टैम्प्स सो दैट वुड बी इजियर फॉर यू गाइस टू नेविगेट थ्रू द वीडियो, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स भाई व्हिच हैज हैपेंड इन फुटबॉल रिसेंटली एंड ट्राई टू कवर एवरीथिंग। लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब मेसी crying over Barcelona. Yes, you heard it right. Messi literally cried over Barcelona. So Messi attended स्पोर्ट का एक इवेंट। ऑफ स्पोर्ट इज एन न्यूज़पेपर एजेंसी और आप कह सकते हो जर्नलिज्म वाली एजेंसी जो स्पेन में खासकर बार्सिलोना में काम करती है। स्पोर्ट मेजरली कवर्स बार्सिलोना एंड मुंडो डेपोर्टिवो मेजरली कवर्स रियल मैड्रिड। दीज आर दी टू फैक्शंस ऑफ न्यूज़ जर्नलिज्म जो स्पेन में ऑपरेट करती है। एंड स्पोर्ट बेसिकली एक वोटिंग करी थी थ्रू आउट बार्सिलोना दैट हु इज द मोस्ट लव्ड प्लेयर इन बार्सिलोना, हु इज द मोस्ट admired player at FC Barcelona. So every fan apparently voted for Lionel Messi, and I believe that there's no other player who's loved more than Lionel Messi by the Barcelona fans, whether they belong from Spain or anywhere in the world. Everyone loves Lionel Messi, and obviously he won that competition जो स्पोर्ट ने रन किया। Now sport is a very huge name in आप कह सकते हैं यूरोप का जो है वो जर्नलिज्म। So they invited Messi over to receive this trophy of being the most Barcelona liked player, and Messi came. He attended the ceremony and he received the award. Now while receiving the award, the sport wale what they did, they played a video which they recorded in the city of FC Barcelona. It's in the city of Barcelona, and they interviewed some fans. They showed him some clips, and while watching those clips of fans expressing their love for Lionel Messi, he had tears in his eyes and he was about to cry. And he said some of the आप कह सकते हो एकदम heart touching वाली lines for एक Barcelona fan. So what he said that I wanted to spend my career at Barcelona. Unfortunately, it happened differently, but I'm really very grateful for this award. For now, I'll probably stay here in Miami for a few years, but we'll return to Barcelona because, as I always said, it's my place, my home. We miss it a lot, and so we will go back there. He also said that after finishing my football career, मैं चाहता हूँ कि मैं बार्सिलोना को in some way or the another, associate रहूँ club से, because I'll be spending my life in the city of Barcelona. So I just want to be connected with my club in some way or another. So that can be एक जो है वो भाई रोल जैसा जॉन क्रॉफ को दिया गया था at one point of time. So वैसा शायद लियोनेल मेसी को भी मिले, but with the right president, because this president Joan Laporta does not have a really very good relationship with Lionel Messi. Now with that, what I want to say is that Lionel Messi भी जो है वो जॉन लपोर्टा से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहते हैं, एंड जब भी जॉन लपोर्टा से मेसी के बारे में बातें की जाती है तो जॉन लपोर्टा भी जो है वो भाई काफ़ी अलग टाइप की जो है वो आंसर्स देते हैं। सो वन ऑफ दोस आंसर जो अपन को भी रिसेंटली देखने को मिला है, लेट मी टेल यू। सो बार्सिलोना में क्या चल रहा है कि अभी वोटिंग वाला जो है वो सीजन चल रहा है। सो एवरी कैंडिडेट इज अप देयर एंड doing public interviews, they're answering many questions of the public, because obviously they all are जो है वो भाई fighting for the presidential elections and they want to be the president. So जो opposite में जॉन लपोर्टा के खड़ा हुआ है, जो पिछले सीजन भी खड़ा हुआ था, जो the number 2 guy हैं अब after जॉन लपोर्टा to be in the presidential elections, वो है विक्टर फॉन्ट। सो विक्टर फॉन्ट जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ही इज डूइंग पब्लिक इंटरव्यूज एंड ऑल। तो वहाँ पे वो काफ़ी सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं, एंड ही एक्सप्लिसिटली हैज सेड दैट जब मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो आई ट्राई टू ब्रिंग इन मेसी। नॉट ओनली जो है वो भाई एक स्टैच्यू हम उसकी कैंप नौ के बाहर मंगाएंगे, बट विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक मेसी एक पार्ट फॉर आर जो है वो भाई क्लब। और यही सेम चीज़ जब जॉन लपोर्टा से पूछी जाती है तो जॉन लपोर्टा कहते हैं कि भाई मेसी को वापस लाना बार्सिलोना में it's an exception that is not realistic. As of now, he has a contract with Inter Miami, which I too agree. 3 साल का भी contract extend किया with Inter Miami, so it's really very hard to see Inter Miami leaving अपना number 1 asset to FC Barcelona once again just for a loan deal. Moreover, he also says that he's the 38-year-old and the club is building a project for the present and the future. It's complicated, and if you leave in the past, you hardly move forward. So you know what? He talks practical aspect. जब मैं ये सब स्टेटमेंट सुनता हूँ जॉन लपोर्टा का तो मेरे को थोड़ा सा सेंस बनाती हैं बातें। जैसे वो ये कह रहा है कि भाई हमारा जो अभी स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है वो यंगस्टर्स के ऊपर जो है वो बिल्ड करना है हमको, और उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है इंटर मियामी के साथ, लेकिन ये लाइन ऐड कर देना कि इफ यू लीव इन द पास्ट यू हार्डली मूव फॉरवर्ड, ये थोड़ा सा ओवर एक्जरेट करता है और कहीं ना कहीं पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। बिकॉज यू नो व्हाट, द पब्लिक डेफिनेटली वांट्स टू, लाइक द पब्लिक आल्सो नो द रियलिटी, लाइक भाई मेसी का आना अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज क्वाइट अनरियलिस्टिक एंड नॉट पॉसिबल, बट व्हेन यू ऐड दीज लाइन्स तो फिर वो हर्ट करता है सेंटिमेंट, व्हेन कहीं ना कहीं आपका वोटिंग जो फैन बेस है वो भी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जॉन लपोर्टा शुड पिक हिज वर्ड्स वेरी राइटली, स्पेशली
especially knowing that there are other good candidates this time. Although Victor Font was also in the last जो है वो भाई election, but Victor Font को इसलिए votes नहीं मिले थे because people trusted Joan Laporta because उसने previously भी manage करी थी क्लब को. But इस season maybe things could be थोड़ा सा different जी उसके मन पे. But मैं जितना समझ पा रहा हूँ the socios are inclined towards Joan Laporta only because recently he has won trophies and हम Barcelona depth से बाहर आ रहे हैं. Spotify camp now is also going to be inaugurated really very soon and we are going to play our first game अभी अगला game. So everything is going very well for Joan Laporta. I don't think so that Victor Font has a chance until and unless he roped in Messi जैसा वो Xavi को rope in किया. So Xavi was actually presented in one of the Laporta के खिलाफ खड़े होने वाले president के एक meeting वगैरह पे. तो that literally shocked me. But yeah, Xavi was there. So अगर somehow Messi also gets involved in the election तो फिर Joan Laporta के लिए problem बन सकती. But as of now I don't think so that Joan Laporta has a tough candidate. Let's move to the next खबर and that is about भाई साहब this amazing कहानी about इस Argentina की federation and the fans are going wild in Argentina because you can see all of this आप कह सकते हो murals जो fans के द्वारा बनाए गए थे उसके ऊपर जो है वो भाई क्या बोलोगे उसको vandalize कर दिया जा रहा है by the people of Argentina. So ये कैसे हो रहा है लाइक ये तो मेसी का वर्ल्ड कप जीतने वाला मूवमेंट तो कितनी बड़ी बात है फॉर ऑल दी अर्जेंटीना फैंस. तो ये कैसे हो रहा है. तो यहाँ पे ये एक प्रोटेस्ट कर रही है अर्जेंटीना के फैंस और वो है अगेंस्ट चिकी तापिया जो AFA के प्रेसिडेंट है. आपने देखा भी होगा लियोनेल मेसी रोड्रिगो डी पॉल हमेशा ये चिकी तापिया के साथ जो है वो फोटो वगैरह भी डालते रहते हैं. तो इसके खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है बिकॉज द फैंस ऑफ अर्जेंटीना फील्स की उनकी फेडरेशन वाले जो है वो भाई बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हैं. नथिंग रिगार्ड्स टू द नेशनल टीम बट इन द क्लब फुटबॉल वाला जो है वो भाई कहानी. सो जो अर्जेंटीना की लीग है दैट इज बहुत जो है वो भाई आप कह सकते हो इन शैम्बल्स बिकॉज जो लीग है उसके रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं. सो अपेरेंटली देयर आर थोड़ा सा लोकल राइवलरी बिटवीन टू क्लब्स और उस राइवलरी के बीच में कोई एक क्लब को प्रेसिडेंट के ऑफिस में बुला करके एक ट्रॉफी दे दी जाती है जिसके चलते जो है वो भाई ये सब चीजें निकल गई कि मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है. किसी को भी जो है वो भाई रोजारियो सेंट्रल को ट्रॉफी दे दिया गया जो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी. तो ऐसे करके कुछ करप्शन वाली कहानी चल रही है. आई ऑल्सो डू नॉट हैव मच अपडेट रिगार्डिंग दिस बिकॉज दिस हैज रिसेंटली स्टार्टेड तो आई विल हैव टू डू माई रिसर्च रिगार्डिंग दिस. बट या यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर नॉट रियली वेरी गोइंग वेल विद द अर्जेंटीना के फैंस जो वहाँ की लीग को सपोर्ट करते हैं एंड विद द AFA के प्रेसिडेंट तापिया. तो इनके बीच में कहानी अच्छी नहीं चल रही. नथिंग टू डू विद द नेशनल टीम विद मेसी एंड एवरीबडी. वहाँ पे लव है बिकॉज दे रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड कप. बट या विद तापिया द थिंग्स आर नॉट रियली वेरी गोइंग वेल. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज अबाउट बर्नार्डो सिल्वा. या बर्नार्डो सिल्वा विल बी लीविंग मैन सिटी एट द एंड ऑफ द सीजन इट सीम्स लाइक बिकॉज जितनी सोर्सेस मुझे मैन सिटी वाले मिल रहे हैं एवरीबडी दे आर सेइंग दैट भाई ही लीव एंड जाएगा यार लाइक ये होना ही होना है. लाइक एज गुंडोगान लेफ्ट इट्स मोस्ट लाइक दैट बर्नार्डो सिल्वा विल आल्सो लीव इन द सेम वे और अदर. वेयर विल ही गो वी रियली डोंट नो. मे बी बार्सिलोना मे बी सम अदर टीम आई रियली डोंट नो मैन. बट या एवरी क्लब विल बी लुकिंग अपॉन हिम बिकॉज ही इज एक प्लेयर जिसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड पेप गार्डियोला के सिस्टम से निकल करके आ रहा है. सो फॉर वन सीजन और टू ही कैन स्टिल गिव वेरी वेल इन यूरोप बट उसके बाद आई फील दैट ही इज थोड़ा सा वॉश्ड. तो या देयर्स दैट. बट या बर्नार्डो सिल्वा अगले सीजन ऐसा फ्री ट्रांसफर आपको देखने को मिल सकते हैं एंड ही कैन मोस्ट प्रोबेबली अगले सीजन लीव मैनचेस्टर सिटी. दैट इज वन थिंग फॉर श्योर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट लिवरपूल. एंड लिवरपूल में ये खुशी की खबर है कि एलिसन इज बैक इन ट्रेनिंग एंड सिंस ही इज बैक इन ट्रेनिंग मोस्ट प्रोबेबली ऐसा किया जा रहा है कि विद द नेक्स्ट अपकमिंग गेम लिवरपूल को बैकर वापस से जो है भाई गोल पोस्ट के बीच में मिलेंगे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ गेम्स दे हैव लॉस्ट विद Mamardashvili I believe that by the fans are looking forward to have Alisson Becker once again between the goal post. But yeah, he is finally back. He's training with the team. So in the next match most probably Alisson Becker will be between the posts for Liverpool. Moving to the next खबर and that is about Barcelona asking Lewandowski stopping to score goals. जी हाँ दोस्तों, this literally happened in the year 2022-23 वाला season where Lewandowski was really very going good. तो वो अगर 25 गोल मार देता तो बायर्न को जो है वो भाई बार्सिलोना को एक 2.5 मिलियन का पेमेंट करना पड़ता बिकॉज देयर वाज दिस सर्टेन क्लॉज इन दी कॉन्ट्रैक्ट कि भाई अगर लेवेंडोस्की 25 गोल मार देगा तो तुमको 2.5 मिलियन हमको देना पड़ेगा. तो इन ऑर्डर टू नॉट एक्टिवेट दैट क्लॉज बार्सिलोना deliberately asked Lewandowski to not score in the last two games for FC Barcelona and he did not score last two goals. but still he won the pitch. जो there was थोड़ा सा जो है वो भाई content feeling within Lewandowski as well कि चलो ठीक है although I did not score
score goals in my last 2 matches, but still I won the Pichichi. So there's that. So this is the take from Lewandowski का नया biography. He has talked a lot about Barcelona का term in his biography. I really hope so that I get hands on Lewandowski की biography. मजा आएगा पढ़ करके. But yeah, the team asking the player not score goals is something absurd जिसको सुन करके लगता है कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो. But it happened eventually. Now let's talk about the last and the biggest cover, and that is about Cristiano Ronaldo की दुश्मन है क्या भाई FIFA. So apparently yes, FIFA ने ये काफी गलत किया even as a Messi fan, which is भाई जो है वो है, अब क्या बोलोगे. तो what happened was कि भाई FIFA ने अपने जो है वो भाई ट्विटर पे ये पोस्ट डाला जिसमें you can clearly see that there was no Ronaldo in the upcoming World Cup को जो है वो भाई अनाउंसमेंट वाली फोटो. अब यहाँ पे हर एक नेशन से जो है वो भाई इन्होंने प्लेयर को उठाया. एंड अर्जेंटीना से मेसी उठे, फ्रांस से एम्बाप्पे उठे. तो यू कैन सी एवरी प्लेयर जो है वो भाई अपनी टीम का. अब यहाँ पे जब पोर्तुगल की बात आई तो दे प्लेस्ड बर्नार्डो कर दिया. तो भाई फैंस काफी नाराज हो गए कि भैया आप जो बंदा 900 कुछ गोल मार चुका है उसको अपने जो है भाई पोस्टर में नहीं लेते हुए, कैसी शर्मनाक चीज है भाई. तो फीफा ने डिलीट कर दिया इस पोस्ट को. बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई, यू वांट रोनाल्डो टू बी इन दी पोस्टर, विल मेक ए पोस्टर जहाँ पे हम जो है वो भाई रोनाल्डो को भी डालेंगे. और उसके बाद उन्होंने जो है भाई ये पोस्टर डाला, उस पोस्टर को डिलीट करके, जहाँ पे फाइनली रोनाल्डो तो दिखते ही हैं लेकिन लियोनेल मेसी भी दिखते हैं, दिस टाइम लिफ्टिंग एक जो है भाई वर्ल्ड कप. नॉट दैट, ऑल्सो जो गोल मोरक्को ने मार के पोर्तुगल को बाहर किया था वो गोल और हेडर और बॉल सब दिखता है. तो ये तो इंटेंशनली जो है वो ऐसा लगता है कि भाई फीफा वाले छेड़ना चाहते हैं रोनाल्डो एंड रोनाल्डो फैंस को कि ये ले भाई, यू आस्क्ड फॉर रोनाल्डो, वी गिव यू रोनाल्डो, बट इन रिटर्न भाई वील आल्सो शोकेस मेसी लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप एंड मोरक्को का वो हेडर टू रिमाइंड यू गाइस जो रोनाल्डो को नॉकआउट करवाया. आई मीन दे आर नॉट गोइंग टू बीट दैट मेसी, सॉरी फीफा इज बायस्ड मेसी के लिए वाला एलिगेशंस वेरी सून. ये अभी स्टे करेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग. सो लेट्स होप फॉर रियली बेस्ट एंड लेट्स होप सो भाई कि फीफा मत कर भाई, मत कर. वी मेसी फैंस हैव अ हार्ड टाइम भाई, विल हैव अ हार्ड टाइम टू वंस अगेन प्रूव दैट कि ये तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो. बट पता नहीं, ऐसा लगता तो है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट वन थिंग व्हिच आई कैन नो दैट व्हाट यू विल डू इज भाई सब्सक्राइब टू आवर चैनल. प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मैं मिलता हूँ आपको कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में. शेयर होकर प्लीज जय हिंद. तुमको मेरी एनर्जी कम दिख रही होगी आज की वीडियो में बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड. इट्स ऑलरेडी 3:11 something, 3:11. So yeah, 3:11. Damn, bye.